নিয়তির নিষ্ঠুর পরিহাস। বহু পরিমাণের মরণ নেশা সামগ্রী জব্দ করতে গিয়ে দুর্ভাগ্যজনকভাবে ট্রাকের আঘাতে নিহত হলেন পুলিশ কনস্টেবল উজ্জ্বল বরা। রুটিন তল্লাশির সময় সন্দেহ হওয়ার কনস্টেবল উজ্জ্বল বরা নেশা সামগ্রী নিয়ে যাওয়া গাড়ি আটকাতে নির্দেশ দেয়, কিন্তু গাড়ি চালক না থেমে দ্রুতবেগে গাড়ি চালিয়ে বাজেভাবে ধাক্কা দেয় কনস্টেবল জনকে। ধাক্কার জেরে কনস্টেবলের মৃত্যুমুখে পতিত হন। পরবর্তী সময়ে রাতাবাড়ি পুলিশ বাহন নিয়ে তাদের ধাওয়া করলে পুলিশের বাহন ক্ষতিগ্রস্ত হলেও কনস্টেবল উজ্জ্বল বরার হত্যাকারী ট্রাক চালক অভিজিৎ শব্দকর ও খালাসি গিয়াস উদ্দিনকে জালে পড়তে সক্ষম হয়। অভিযানে আরেক পুলিশ আধিকারিক বিমল ছেত্রী আঘাতপ্রাপ্ত হন। এত সব অনাকাঙ্ক্ষিত ঘটনা সংঘটিত হওয়ার পর নেশা সামগ্রী বহন করা ট্রাক বাজেয়াপ্ত করতে সক্ষম হয়। জব্দ ইয়াবা ট্যাবলেটের বাজার মূল্য 5 কোটি টাকা হবে বলে মনে করা হচ্ছে। আমার ইউবিসি কনস্টেবল 442 উজ্জ্বল বৰা ডিউটি কৰা অৱস্থাত এখন ট্ৰাকৰ থ্ৰুদি এক্সিডেণ্ট হৈ পেলাই তেওঁ তাতে ঢুকাইছে। তেওঁৰ দেউতাকৰ নাম লেট গোপাল বৰা, মাদাৰ্ছ নেম টুটুমণি বৰা, ভিলেজ চুতীয়াখাৰী গাঁও, PS যোৰহাট, ডিষ্ট্ৰিক্ট যোৰহাট। ডেট অফ বাৰ্থ হ'ল 24/11/1995। তেওঁ কৰিমগঞ্জত যোগ দিছিলে 16/5/2022। 2 years 6 months and 28 days অসম পুলিচত চাকৰি কৰিলে। দুটা ৰিৱাৰ্ড পাইছে। ডেট অফ ৰিটায়াৰমেণ্ট 30/11/2055। ডেট অফ ডেথ 14/12/2024। আজিৰ দিনত তেওঁ বয়স আছিলে 29 years 20 days।
বিদ্যাশিক্ষার পাশাপাশি পড়ুয়াদের বহির্বিন্যাস ঘটাতে এ ধরনের টিএলএম প্রতিযোগিতা ও প্রদর্শনী অধিক প্রয়োজন। প্রদর্শনী থেকে অনেক কিছু আয়ত্ত করার সুযোগ ঘটবে শিশু পড়ুয়াদের। আগামী দিনে তারা শৈক্ষিক ক্ষেত্রে অনেক বিস্তার লাভ করতে সক্ষম হবে। প্রদর্শনী কার্যক্রমে উপস্থিত থেকে সামগ্রীগুলো দেখবার সুযোগ ঘটেছে, তার জন্য মনের দিক দিয়ে অধিক আনন্দ অনুভব হচ্ছে। সামগ্রী তৈরি করে প্রদর্শনী সুষ্ঠু প্রবর্ধন করছেন, তাদের উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ কামনা করেন। আজ সর্বশিক্ষা মিশন অসম তথা আরবান এডুকেশন ব্লকের যৌথ ব্যবস্থাপনা শ্রীভূমি এমএমসি উচ্চতর মাধ্যমিক প্রতিষ্ঠান প্রাঙ্গণে টিএলএম প্রতিযোগিতা ও প্রদর্শনী কার্যক্রমে এভাবে মনের কথা ব্যক্ত করেন শ্রীভূমি বিদ্যালয়সমূহের পরিদর্শক নীলকমল দাস। অন্যদিকে বিদ্যালয়সমূহের আরেক কর্তৃপক্ষ খয়রুল ইসলাম হাজারি উল্লেখ করেন, শিক্ষকরা যদি নিজ হাতে সামগ্রী তৈরি করেন এভাবে, তাহলে আগামীতে অনেক টিএলএম ব্যাপকভাবে গঠিত হবে। এর ফলে পড়ুয়ারা অতি সুষ্ঠু ও সুন্দরভাবে পাঠদান করার সুযোগ লাভ করবে। রকমারি সামগ্রী তুলে ধরার জন্য সবার কাছে আকর্ষণীয় হয়ে উঠেছে বলে উল্লেখ করেন তিনি। কার্যক্রমে শিক্ষা বিভাগের বিশিষ্টজনেরা সহ অন্যান্যরা সামিল ছিলেন। এই কম্পিটিশন জাজ করার জন্য এই টিএলএম এক্সিবিশনের মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে যে ক্লাসরুম ট্রানজ্যাকশন রিফ্লেক্ট। টিচাররা যে ক্লাসরুম ট্রানজ্যাকশন যেটা করে, তারা যদি রেডিমেড টিএলএম দিয়ে করে তারা সন্তুষ্ট হয় না। যদি নিজ হাতে তৈরি করে নো কস্ট এবং লো কস্টে তৈরি করে অনেক টিএলএম তৈরি করা যায়। আর এই টিএলএমের মাধ্যমে বাচ্চাদেরকে অতি সুন্দর এবং সুষ্ঠুভাবে পাঠদান করা যায়। এটাই টিএলএম এক্সিবিশনের উদ্দেশ্য। আজকে এই টিএলএম এক্সিবিশনটা দেখা যাচ্ছে যে একটা যুদ্ধক্ষেত্রের মতো, যে কেউ পেছনে না, প্রতিটি ক্লাস্টার এমনভাবে টিএলএমগুলা রেডি করে নিয়ে এসেছে যে MMC গাৰ্লছ স্কুলত। চ' মই যিহেতু আমাৰ এনেই অফিচিয়েলি আজি বন্ধ, কিন্তু আমি চৰকাৰী কামৰ বাবে কেতিয়াও বন্ধ নাথাকে। আৰু আমাৰ টিচাৰ্ছখিনিয়ে ইমান ধুনীয়াকৈ কাম কৰিছে, টিএলএমবিলাক বনাইছে আৰু এক্সিবিশ্যন কৰিছে। তো মই চাব আহিছোঁ। আৰু আজি ছাউথ কৰিমগঞ্জ ব্লকতো যাম, যিহেতু এতিয়া ব্লকৰ নামটো ছাউথ কৰিমগঞ্জে হৈ আছে আমাৰ শ্ৰীভূমি জিলাৰ। চ' তাতো চাব যাম। কথাটো হ'ল এই টিএলএম আচলতে আমাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীক খুব শিকাওঁতে বহুত দৰকাৰ হয়। টিচিং লাৰ্ণিং যিটো আমাৰ মেটেৰিয়েলছবিলাক আছে, সেইটো ব্যৱহাৰ কৰিলেহে আমাৰ শিক্ষাটো ফলপ্ৰসূ হয়। আমাৰ বহুত টিচাৰ্ছ আছে, আগৰ ট্ৰেডিশ্যনেল শিকোৱাটো হ'লে নহ'ব। আজিকালি বাচ্চাই ক্লাছত যাই কিটো কৰিলে বেছি ভাল পাব, কি কৰিলে ভাল পাব, সেই বস্তুটো জানিব লাগিব। তাৰ কাৰণে কিছুমান এনেকুৱা এওঁলোকে বনাইছে। আমাৰ টিচাৰ্ছখিনি খুব এক্টিভ, আৰু আমাৰ এলিমেণ্টাৰী ছেকশ্যনৰ টিচাৰ্ছখিনি বহুত ইয়ং। চেন্নাই হাসপাতালে বিশেষ চিকিৎসকদের সান্নিধ্য পাওয়া সম্ভব হয় না সচরাচর, কিন্তু রোগীদের অত্যাধিক সুযোগ করে দিলেন শ্রীভূমি মেডিপয়েন্ট। দুইজন বিশেষজ্ঞ শ্রীভূমিতে এনে নজির সৃষ্টি করেন প্রতিষ্ঠান কর্মকর্তারা। একজন হলেন নিউরোলজি ডক্টর বিবেক আয়ার ও অন্যজন গ্যাস্ট্রোএন্টারোলজি ডক্টর সন্তিন গণেশান। সিমস হাসপাতাল চেন্নাই থেকে শ্রীভূমিতে পা রাখেন দুই বিশেষজ্ঞ। আজ শহরের স্টিমারঘাট রোড এলাকায় এক বিশেষ শিবিরে দুই চিকিৎসক অনেক রোগীদের শারীরিক পরীক্ষা করেন, যারা অনেকদিন শারীরিক সমস্যায় রয়েছে। চিকিৎসার পাশাপাশি দুই বিশেষজ্ঞ মিডিয়ার একান্ত সাক্ষাৎকারে নিজের পেশাগত দিক সহ রোগীদের নানাবিধ সমস্যা সহ সমাধানের কথা ব্যক্ত করেন। ज़्यादा मोशन जाता है और मोशन ब्लीडिंग होता है, ये कंप्लेंट के साथ हमारे पास आते हैं।
सो उनका हम लोग इधर देके जो मेडिसिन सजेस्ट करते हैं, कुछ लोगों का टेस्ट भी ज़रूरत पड़े तो उसको लिख देंगे और उसको रिपोर्ट को देके उसको आगे इलाज करेंगे। अगर कुछ बड़ा सर्जरी वगैरह ज़रूरत है, कुछ फैसिलिटी इधर अवेलेबल नहीं है, उसको वी विल कॉल देम टू चेन्नई फॉर ट्रीटमेंट एंड आई एम हैप्पी टू बी हियर टू हेल्प द पेशेंट्स हु आर इन नीड। सो थैंक यू सर। आप यहाँ पे तो पेशेंट देखते हैं, प्राइमरी जो होता है गैस्ट्रो में फर्स्ट कैसा प्रॉब्लम दिखाई देता है पेशेंट को? जो दो प्रॉब्लम होता है यहाँ पेशेंट्स, ज़्यादातर पेशेंट्स गैस्ट्रिक कंप्लेन करते हैं, गैस बनता है वो कंप्लेन करते हैं। सो बेसिकली इट इज़ बिकॉज ऑफ फूड प्रॉब्लम है। जो फूड टाइम से नहीं खाते हैं और जो फूड का क्वालिटी भी ठीक नहीं रहता है। सो नॉर्मल आदमी फूड को टाइम में खाना पड़ेगा, थोड़ा थोड़ा करके बार बार खा सकते हैं, लेकिन टाइमली फूड खाना पड़ेगा, नहीं तो एसिड बनता है, एसिड की दिक्कत होता है। और खाने में फल हरी सब्जी ज़्यादा खाना है, जो पैकेज फूड है, प्रोसेस्ड है, एक्सेस ऑयल और तेल मसाला चीज़ कम खाना है। बच्चों में सर हो सकता है ये प्रॉब्लम? हाँ, इवन चिल्ड्रन दे कैन, बच्चों में भी ये प्रॉब्लम हो सकते हैं, बट ज़्यादा जो वर्किंग पीपल है, दोज हु ईट आउटसाइड ऑफन, कॉन्स्टिपेशन भी कॉमनली हम देखते हैं, जो वाटर कम लेते हैं और फल हरी सब्जी कम लेते हैं और फिजिकल एक्टिविटी नहीं करते, सेडेंटरी लाइफ से एक जगह पे बैठ के काम करते हैं, उन लोगों का कॉन्स्टिपेशन के चांसेस रहता है। तो आपने आज बहुत सारे पेशेंट को डायग्नोसिस किया है, मेजर कोई प्रॉब्लम है क्या? सो हम लोग जो चेन्नई में ऑलरेडी देखते हुए पेशेंट फॉलोअप के लिए मेजर डिजीज़ का जो ट्रीटमेंट करते हैं उन लोग को दिखा है, और बाकी मोस्टली कॉमन कंप्लेंट्स के साथ आते हैं, जो प्रोटीन गैस्ट्रोएंटेरोलॉजी कंप्लेंट्स के साथ आते हैं। अभी तक सर कितना पेशेंट को दिखा टेस्ट किया? सो हमारा अभी तक 10 मरीज देखा होगा दोपहर से, हम वी केम हियर एन आवर बैक। थैंक यू सर। से न्यूरोलॉजिस्ट, तो अभी ये जो करीमगंज में कैंप के लिए आया हूँ, तो इधर एक 15 से 20 पेशेंट अब तक देखे हैं। तो उसमें बहुत सारे तो डिस्क प्रॉब्लम जो बोलते हैं, सर्वाइकल डिस्क या लंबर में जो स्पॉन्डिलोसिस का प्रॉब्लम है, वो पेशेंट्स देखे हैं। पार्किंसंस के कुछ पेशेंट्स देखे हैं जिनके हाथ कांपते हैं, और माइग्रेन पेशेंट, मतलब सर दर्द, एक साइड का सर दर्द होता है, तो ये 3 टाइप के पेशेंट्स देखे हैं अब तक। सर हमारे यहाँ पे ज़्यादातर दिखाई देता है जो पैर में दर्द करता है, ये एक मेजर प्रॉब्लम होता है। अभी आपने एक पेशेंट को ट्रीट किया है, तो इस प्रॉब्लम से छुटकारा कैसे पाया जाए? देखिए, पहला तो ये पैर के दर्द के कारण बहुत सारे हो सकते हैं। एक जो बुजुर्ग हैं तो उनके घुटने का प्रॉब्लम, जो वात बोलते हैं, आर्थराइटिस बोलते हैं, घुटने के प्रॉब्लम की वजह से पैर का दर्द, चलने में दिक्कत हो सकता है एक। दूसरा तो डिस्क, मतलब कमर में जो रीढ़ की हड्डी के बीच में जो डिस्क रहता है, उस तरह के नस को दबा रहा है तो उसके कारण भी हो सकता है। तो ये 2 कारण हैं। तो अगर हमको हिस्ट्री से समझ में आ जाता है ये घुटने का प्रॉब्लम है या कमर का प्रॉब्लम है, तो उसके हिसाब से एक्सरे देख के दवाई देना है हमको। और ठंडी का सीज़न है, तो ठंडी के टाइम में एनीवेज जॉइंट्स अकड़ जाते हैं, मसल्स अकड़ जाते हैं। सो मॉर्निंग में बैक एक्सरसाइजेस और स्ट्रेचेस करना हेल्पफुल रहेगा सब लोगों के लिए। सर पैर में दर्द में जो होता है मेजर प्रॉब्लम जो दिखाई देता है ओल्ड एज में होता है, उसमें ट्रीटमेंट में वार्म वाटर अच्छा होता है या फ्रीजिंग वाटर? नहीं, जैसे बहुत ज़्यादा दर्द रहेगा, पेन एकदम अक्यूट पेन रहेगा, सूजन है, रेडनेस है, तो तभी आप वार्म वाटर दे सकते हैं। और मेनली बेसिकली वार्म वाटर अच्छा है। कोल्ड वाटर या आइस कप देते हैं जब एक्सरसाइजेस करने के बाद, स्ट्रेच करने के बाद, फिजियोथेरेपी स्ट्रेच करते हैं, उसके बाद आइस कर सकते हैं आप। सर बच्चों में कन्वर्शन का प्रॉब्लम दिखाई देता है, ये क्या जानलेवा हो सकती है? देखिए, बचपन में अगर अभी पैदा होते वक्त बच्चे तुरंत रोते नहीं हैं, तो अगर ऐसा होता है कि बच्चा तुरंत रोया नहीं, तो क्या होता है कि जो बच्चे का ब्रेन का सर्कुलेशन है वो बराबर नहीं होता है, तो ब्लड फ्लो ब्रेन को जाता नहीं है, तो उसके दाग के कारण फिट्स आ सकता है। तो अनट्रीटेड रहा फिट्स, हमने अगर फिट्स को नज़रअंदाज किया और बराबर से हमने टाइम पे ट्रीटमेंट चालू नहीं किया, तो जान को खतरा हो सकता है। बट दवा आजकल सब मार्केट में इतने सारी दवाइयाँ हैं फिट्स के लिए, दवा चालू किया तो फिट्स के कारण होने वाला जान का खतरा तो टल सकता है डेफिनेटली। हमारे यहाँ पे बोला जाता है या एपोलो में बोला जाता है 5 साल तक खाता है, इसका कोई
वैलिड रीज़न है कि 5 साल तक? नहीं, क्योंकि कुछ कुछ रहते हैं बीमारियां जिसमें हमने 3 साल तक देते हैं, कुछ कुछ में 5 साल तक देते हैं। तो क्या रहता है कि 2 चीज़ रहते हैं। तो MRI में क्या है पेशेंट को, कुछ दाग है क्या, या क्लॉट है, ट्यूमर है जिसके कारण फिक्स है। और EEG जैसे हम इलेक्ट्रिकल रिकॉर्ड देखते हैं ब्रेन का, तो दोनों अगर नॉर्मल रहेगा, MRI EEG भी नॉर्मल रहेगा, तो मिर्गी के पेशेंट को 2.5 से 3 साल में दवा कम करके बंद करने का कोशिश कर सकते हैं। उन दोनों में प्रॉब्लम रहेगा तो 5 साल तक देना पड़ता है। तो कमर दर्द का एक ये कारण रह सकता है जो मैंने बोला, डिस्क। और दूसरा, प्रेगनेंसी में अगर सिजेरियन किया है तो स्पाइनल टैप करते हैं, स्पाइनल एनेस्थीसिया देते हैं। उसके बाद ही कभी कभी मसल्स वगैरह बहुत स्टिफ हो जाते हैं, वीक हो जाते हैं। तो ऐसे लोगों को वज़न, मोटे रहे वो, वज़न उनका ज़्यादा रहा, एक्सरसाइज नहीं कर रहे, चलने रेगुलर वॉकिंग वगैरह नहीं कर रहे हैं, तो ऐसे लोगों को डिस्क का प्रॉब्लम ज़्यादा होने के चांसेस हैं। तो मेन तो वही है, डिस्क डिजीज़ जो है उसके कारण ही दर्द ज़्यादा रहता है कमर का। और दूसरी कई चीज़ें रहती हैं जिसमें बोन में इन्फ्लेमेशन होता है, आर्थ्रोपैथी बोलते हैं। जैसे हाथ पैर के जॉइंट्स में आर्थराइटिस अफेक्ट करता है, वैसे बैक को भी अफेक्ट करता है। वो भी महिला या मेल्स में कॉमन। আমি যার কাছে গিয়েছিলাম জ্যেষ্ঠ ডাক্তার গণেশন, খুব ভালো ডাক্তার বলে মনে হলো। আমার গ্যাস্ট্রিকের প্রবলেম ছিল, আমি অনেক ডাক্তার দেখিয়েছি, কোনো কাজ হয়নি। ওনার কাছে গেলাম, তো দেখলে বলে আপনার কোনো প্রবলেম নেই, একটা ওষুধ দিয়েছেন, আর কিছু দেননি। ওনার কথাবার্তা শুনে আমার খুব ভালো লেগেছে, মনে হলো খুব ভালো ডাক্তার। রিপোর্টগুলি চেক করেছেন? রিপোর্টগুলো চেক করেছেন। রিপোর্ট চেক করার পরে বলেছেন যে না কিছু নেই।